रोज़ की तरह आज हम श्रीमद् भागवतम को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट डे हमने टेक्स्ट 4 को पढ़ा था और उसके एक्सप्लेनेशन ट्रांसलेशन को सिर्फ पढ़ा था, एक्सप्लेनेशन को आज पढ़ना था। जो ट्रांसलेशन था उसमें यही चीज़ मेंशन था कि सौनक ऋषि के लीडरशिप में फॉरेस्ट ऑफ नैमिषारण्य में बहुत सारे ऋषियाँ एकत्रित हुए थे 1000 साल तक सैक्रिफाइसेस करने के लिए, यज्ञ करने के लिए और भगवान को संतुष्ट करने के लिए, उनके भक्तों को संतुष्ट करने के लिए। सो इसका पर्पज पढ़ते हैं। द prelude of the Srimad Bhagavatam was spoken in the previous 3 shlokas. Now the main topic of this great literature is being presented. Srimad Bhagavatam, after its first recitation by Srila Sukadeva Goswami was repeated for the second time at Naimisaranya. In the Vyavya Tantra, it is said that Brahma, the engineer of this particular universe, contemplated a great wheel which could enclose the universe. मतलब एक बड़ा सा उन्होंने चक्र बनाया था जो इस पूरे यूनिवर्स को एनक्लोज कर सकता है. The hub of this great circle was fixed at a particular place known as नैमिषारण्य. इसका जो हब था वो नैमिषारण्य की जगह लोकेशन में स्थित था. Similarly, there is another reference in the forest of Naimisaranya in the Varaha Purana, where it is stated that by performance of sacrifice at this place, the strength of demonic people is curtailed. यहाँ पे अगर हम यज्ञ करते हैं तो जो demons है उनका शक्ति कम हो जाता है. Thus Brahmanas prefer Naimisaranya for such sacrificial performances. The devotees of Lord Vishnu offer all kinds of sacrifices for his pleasure. The devotees are always attached to the service of the Lord, whereas fallen souls are attached to the pleasures of the material existence. देखो जैसे क्रिश्चियनिटी में फॉलन सोल्स का कंसेप्ट है, वही सेम चीज़ यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो भक्त होते हैं वो भगवान के पास, भगवान के लिए बहुत सारे त्याग करते हैं, बट जो वो हमेशा ही भगवान के सेवा में रहते हैं. और जो फॉलन सोल्स है वो हमेशा मटेरियल प्लेजर्स के अंदर, मटेरियल एग्जिस्टेंस में रहते हैं. In Bhagavad Gita, it is said that anything performed in the material world for any reason other than that for the pleasure of Lord Vishnu causes further bondage for the performer. कोई भी तरीके का आप एक्टिविटी करते हो भगवान विष्णु के तरफ अपने भक्ति को प्रदर्शित करने के या फिर उनके प्रति भक्ति जताने के अलावा कोई भी एक्टिविटी आप करते हो वह सिर्फ और सिर्फ आपको मटेरियल बॉन्डेज बढ़ाता है. It is enjoined therefore that all kinds therefore that all acts must be performed sacrificially for the satisfaction of Vishnu and his devotees. This will bring everyone peace and prosperity. ये सबके लिए peace and prosperity लाएगा. The great sages are always anxious to do good to the people in general, and as such the sages headed by Saunaka and other assembled in this holy place of Naimisaranya. तो great जो sages थे वो हमेशा ही anxious रहते थे, लोगों के लिए कुछ अच्छा करना है, कैसे करेंगे, कर पाएंगे कि नहीं, तो वो एनर्जी में रहते थे. इसीलिए जो सौनक्य ऋषि के सानिध्य में जो थे वो भी ऐसे ही एनर्जी में थे. As such the sages is headed by Saunaka and others assembled at the holy place. सारे लोग बहुत ज़्यादा एंशियस थे कि हम सही से कर पाएंगे कि नहीं, ये कंटिन्यूस 1000 साल तक कैसे चलेगा, हम सब कुछ कैसे करेंगे. Forgetful men do not know the right path for peace and prosperity. सारे सब लोग भूल जाते हैं, भुलक कर है तो वो याद नहीं रख पाते चीज़ों को सही से करने का तरीका. However, the sages know it well. लेकिन जो साधु संत हैं उनको तो पता है कि कैसे करना चाहिए. Therefore, for the peace and good for all men, they are always anxious to perform acts which may bring about peace in the world. They are sincere friends to all living entities, and at the risk of great personal inconvenience, they are always engaged in the service of the Lord for the good of the people. तो वो लिविंग एंटिटीज़ के एक्चुअल में रियल दोस्त है और वो सबके कन्वीनियंस के लिए अपना रिस्क उठा करके वो सबके भले के लिए, भगवान के भक्ति के लिए, ताकि भगवान की कृपा सब पे बने रहे, उन्होंने सबके बिहाफ पे ये करने का सोचा. Lord Vishnu is just like a great tree and all others including demigods, siddhas, men, charanas, vidyadharas and other living entities like the branches, twigs, leaves of the tree. तो भगवान श्री कृष्ण एक पेड़ जैसा है, विष्णु जी पेड़ है और सारे जितने भी इंसान हैं, सिद्ध पुरुष है, चरण हैं,
पोरिंग वाटर ऑन द रूट ऑफ द ट्री, जैसे हम जड़ में पानी डालते हैं, पूरे पौधे के हर एक अंश में वो पानी ऑटोमेटिकली नरिश्ड होकर के उसको मेंटेन करता है। ओनली दोज ब्रांचेस एंड लीव्स विच आर डिटैच्ड कैन नॉट बी सेटिस्फाइड। जो गिर गए हैं, जो लीव्स नीचे गिर गए हैं, भगवान मतलब पेड़ से जो लीव्स एंड ब्रांचेस टूट के गिर गए हैं उनका हम सेवा नहीं कर सकते, बट जो पेड़ से जुड़े हुए हैं वो सेवा प्राप्त कर लेते हैं और शांति प्राप्त कर लेते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण को जल चढ़ाने से साथ वाले सारे लोगों का, सारे भक्तों का कल्याण होता है। जब आप एक कोई भगवान श्री कृष्ण का पास में प्रेयर करते हैं ना, तो दुनिया के सारे भक्तों को कल्याण होता है। जब लेकिन जो नॉन भक्त है, जो पेड़ से गिर गए हैं, मतलब जो पत्ता ड्राई होके गिर गया है, पौधे का अंश नहीं है, तो वो उसका नहीं होता कुछ। बट कहीं ना कहीं वो भी जड़ के पास में आकर के अगर लिपट जाता है, मतलब भगवान के चरण में आ जाता है, तो वो उस ट्री का मैन्योर बन जाता है। तो कहीं ना कहीं वो जब उस मिट्टी के साथ में मिल जाता है या भगवान के चरण मतलब में खुद को समा देता है, तो वो उस पूरे पेड़ के लिए एक मैन्योर बन सकता है। तो उसके पास में इतनी पोटेंशियल है। तो कहीं ना कहीं जब आप ईश्वर के साथ में जुड़ते हो तो आपका भी कल्याण होता है। और जब हम ईश्वर के प्रति भक्ति दिखाते हैं तो जितने भी भक्त हैं सबका कल्याण होता है। Similarly, human society, when it is detached from the personality of Godhead, like detached branches and leaves, is not capable of being watered, and only attempting to do so is simply wasting the energy and resources. The modern material, तो जो लोग भगवान के भक्त नहीं है, उनको भगवान के बारे में बोलना या उनके भक्ति का गीत सुनाना कोई मतलब का बात नहीं है, क्योंकि उनके अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं है। The modern materialistic society is detached from its relation to the Supreme Lord. मॉडर्न मटेरियलिस्टिक सोसाइटी भगवान से बहुत ज़्यादा डिटैच्ड है या हुआ था, ऐसा हम बोल सकते हैं। अभी तो वापस से सब भक्त बन रहे हैं। बट एंड ऑल इज प्लान्स विच आर बीइंग मेड बाय एस्थेटिक लीडर्स आर श्योर टू बी बैफिल्ड एट एवरी स्टेज। जितने भी सारे नॉन भक्त हैं, जो भी सारे अपने प्लान्स बना रहे हैं, वो सारे नाकाम ही हो जाने वाले हैं। ये दे डू नॉट वेक अप, लेकिन वो समझते नहीं हैं। इन दिस एज द congregational chanting, मतलब वो हरे कृष्ण कंटिन्यूस जो चैंटिंग ऑफ द होली नेम्स ऑफ द लॉर्ड इज द प्रिस्क्राइब्ड मेथड फॉर वेकिंग अप। उस नाम का जापने से ही आपको समझ में आएगा क्या सही है क्या गलत है, और आपके काम बनेंगे। बताती हूँ मैं इसका एग्जाम्पल। द वेज एंड मीन्स आर मोस्ट साइंटिफिकली प्रेजेंटेड बाय लॉर्ड श्री चैतन्य महाप्रभु, एंड इंटेलिजेंट पर्सन्स मे टेक एडवांटेज ऑफ हिज टीचिंग्स इन ऑर्डर टू ब्रिंग अबाउट रियल पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। Srimad Bhagavatam is also presented for the same purpose, and this will be explained more specifically later in the text. तो श्रीमद् भागवतम के ज़रिए ही जब आप चैतन्य महाप्रभु ने जैसे नाम जाप का बोला था, तो नाम जाप के अलावा भी जो भगवान की टीचिंग्स को सुनता है, पढ़ता है, उसको भी शांति प्राप्त होती है, उसके लाइफ में प्रॉस्पेरिटी होती है। श्रीमद् भागवतम को पढ़ने से भी यही पर्पस सॉल्व होता है कि आप धीरे धीरे ईश्वर के और निकट और करीब आ जाते हो। आज के लिए यही तक है। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम।